Everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy, and this is the part 4 of Vocabbing A to Z. Like my other videos, I believe you have seen my other videos also. What I'm going to do is that I'm going to take some of the very important words. In this video, I'm going to take some of the very important words from your competitive exams point of view that begins with letter B. I mean, the base word will begin with the letter B, and then we'll follow it up with some synonyms and antonyms, which also are very important. So I really insist कि आप पूरा end तक देखो पूरा video ताकि you can understand some new words and you not from your competitive exams point of view just only आपको general life में भी आपको use करने में इनको बहुत easy हो जाएगा because I'm going to discuss the sentence भी कुछ words का मैं discuss करूँगा कि आप sentence में कैसे use करोगे and also will know the parts of speech. ठीक है? तो without making further delay, let's begin. So here it is, the first word, bustle. Such a nice word, bustle. So what is the part of speech? It's a verb. Okay, generally it's used as an adjective also at times, but here we'll know the verb forms. Okay, bustle. So example अगर मैं बोलूँ like Shweta was running late, so she had to bustle to reach her office on time. ठीक है? क्या बोला मैंने? Like Shweta was running late, so she had to bustle to reach her office on time. तो इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे. You could guess the meaning, I believe. तो इसका मीनिंग क्या होगा? Yes, you are correct. इसका मीनिंग क्या होगा? It means to move in a very energetic manner. बहुत ही busy way में चलना या in a very busy manner. Like bustle bee बोलते हैं ना हम लोग एकदम मधुमक्खी के जैसा जैसे अभी इस फूल में कभी उस फूल में यहाँ वहाँ भटक रहा है शहद कलेक्ट कर सके उसके लिए. तो bustle means to move in a very energetic and busy manner. ठीक है? To move in energetic or busy manner. This means to bustle around. ठीक है? तो synonyms देख लेते हैं. haste, जैसे हम लोग बोलते हैं ना carelessness and haste cause mistake. बचपन से ये सेंटेंस सुनते आ रहे हैं हम लोग कि carelessness and haste cause mistake. That means जल्दी जल्दी करना, कोई चीज पे ज्यादा रश कर जाना. ठीक है? तो एग्जांपल में लिख दूं क्या? It's like बहुत ही कॉमन है. Carelessness and haste would cause mistake. कोई गलती कराता है, जल्दी जल्दी करना कोई चीज को. ठीक है? रश जैसे अगर मैं बोलूं इट्स लाइक द डॉक्टर रश्ड टू सेव द पेशेंट. ठीक है? द डॉक्टर रश्ड टू सेव द पेशेंट मतलब बहुत ही किसी चीज को देख के बहुत ही जल्दी करके उस पे मूव करना या उस चीज को अंजाम देना. दैट मीन्स टू रश करना उस पे. ठीक है? टमल्ट इज सच अ नाइस वर्ड. टमल्ट मीन्स अगर मैं एग्जांपल बोलूं जैसे अभी कोविड के टाइम में the whole country is in a state of fear and tumult. The whole country is in a state of fear and tumult. That means a state of confusion or a state of disorder. जो मतलब हड़बड़ी करना यहाँ वहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आना and to be in a state where you do not understand what should be your next step. ठीक है? In very busy manner, in a very fearful and all these kind of things, in a very confusing and disorderly. ठीक है? तो tumult is a state of confusion, a state of confusion or disorder. तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कोविड के लिए the whole country is in a state of fear and tumult. समझ गए होंगे आप लोग मीनिंग. तो इट मीन्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर. ठीक है?
तो स्करी इज लाइक, अगर मैं बोलूँ लाइक पेडेस्ट्रियन, जो रास्ते पे चलते हैं हम लोग, जो पेड़ से चलते हैं, जो लाइक कोई व्हीकल नहीं यूज करते, पेडेस्ट्रियन स्करीड टू कवर द डिस्टेंस। पेडेस्ट्रियन स्करीड टू कवर द डिस्टेंस, तो मतलब इसका मतलब क्या निकला? इट मीन्स टू मूव क्विकली, टू मूव क्विकली। एग्जाम्पल लिख दूं क्या? Pedestrians scurried to cover the distance। इसका मतलब क्या निकला? इट मीन्स टू मूव क्विकली, जल्दी जल्दी करना। ठीक है, तो आपको बेस वर्ड क्या रहा था? बसल। बसल का मतलब जैसे मैंने समझाया था, टू मूव इन अ वेरी एनर्जेटिक एंड बिजी मैनर, तो उसका उल्टा क्या होगा? स्लोनेस। ठीक है, बहुत ही ढील, स्लो होना, दैट स्लोनेस। स्लगिशनेस, ये स्लगिश मैंने पहले भी कोई एक वीडियो में समझाया था, आई बिलीव आपको याद होगा। इट मींस वेरी आलसी, वेरी ढीला, जिसको हम लोग बहुत ही लेथर्जिक बोलते हैं, वेरी आलसी। ठीक है, दैट्स स्लगिश। इनर्टनेस, अगर बचपन में तो केमिस्ट्री सबने ही पढ़ा होगा, जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी 8 9 10 का केमिस्ट्री तो सबने ही पढ़ा होगा। तो इनर्ट गैसेस आई बिलीव आपने पढ़ा होगा, याद है आपको, पीरियडिक टेबल में इनर्ट गैसेस लाइक वो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, जिसको हम लोग बोलते थे, तो उनको नोबल गैसेस भी बोलते थे। क्यों? बिकॉज वो एक्टिविटी नहीं दिखाते थे, वो किसी के साथ रिएक्ट विएक्ट करने के लिए उनको, वो खुद से जाके किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जनरली एकदम इनर्ट, चुपचाप नोबल के जैसा बैठे रहते थे। तो इनर्ट का मतलब क्या? इनर्टनेस का मतलब है लैक ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, लैक ऑफ एक्टिविटी। तो इसीलिए वो नोबल गैसेस, जिसको आप लोग अगर याद है, इट्स लाइक हीलियम, ठीक है, नियन, आर्गन, जेनन या क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, तो इनको हम लोग क्या बोलते थे? हीलियम, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। इनको हम लोग क्यों बोलते थे इनर्ट गैसेस? या बोलते थे, नहीं बोलते हैं अभी भी, क्योंकि वो किसी के साथ वो रिएक्ट वेक्ट नहीं करता है, वो अपना खुद से जाके किसी के साथ रिएक्ट वेक्ट नहीं करता है दूसरा एलिमेंट के जैसा, वो हमेशा अपना आराम से रहता है। तो इनको नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कैरेक्टर ही ऐसा, तो वो इनर्ट है जो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। आइडलनेस, जैसे अभी सब बहुत बिजनेसमैन या मिडिल क्लास फैमिलीज के बहुत लोगों को वो कोविड के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, दे आर सिटिंग आइडल, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है लेबर्स को, ये छोटे बिजनेसमैन को, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, बिकॉज एंड दे आर सिटिंग आइडल। आइडल मतलब ऐसे ही घर पे बैठे रहना, या कोई एक सिचुएशन जहां पे कोई काम नहीं करना, या चुपचाप रहना, कोई एक्टिविटी नहीं करना, दैट्स आइडल। तो आइडल से बना आइडलनेस। तो बसल का मतलब है टू मूव इन अ वेरी एनर्जेटिक एंड बिजी मैनर। ठीक है, तो इसीलिए एग्जांपल क्या था? श्वेता वाज रनिंग लेट, सो शी हैड टू बसल टू रीच हर ऑफिस ऑन टाइम। तो इसका सिनोनिम्स बन गया हेस्ट। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, केयरलेसनेस एंड हेस्ट कॉज मिस्टेक, वैसे ही रश, वो ऐसे ही सिनोनिम्स आता है, द डॉक्टर रश्ड टू सेव द पेशेंट, ऐसे ही कुछ बताया था। टमल्ट, टमल्ट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे अभी कोविड के लिए, द होल कंट्री इज इन स्टेट ऑफ फियर एंड टमल्ट। scurry like pedestrian scurry to cover the distance, it means to move very quickly। ठीक है, वेरी इजी वर्ड्स, कोई रॉकेट साइंस वर्ड्स नहीं है, लेकिन बस उसको ऐसे करके सीखो कि आप ना एग्जांपल्स के साथ या कुछ एनालिसिस करके कुछ कोई चीज के साथ एसोसिएट कर दो, ताकि बहुत लंबे टाइम तक आप इसको याद रख सको। ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर, मैं बहुत वीडियोस में पहले भी अभी भी बता रहा हूँ कि आपको ये वर्ड सिर्फ जानने से नहीं होगा कि आपने बेस वर्ड जान लिया कि अच्छा बी से क्या स्टार्ट किया, आज बसल किया, ये सिर्फ जान लेने से नहीं होगा, बिकॉज आपको हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल में टमल पूछ सकता है, बसल ही पूछेगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस कर ही पूछ सकता है, या कहीं पे ये लिखा मिल सकता है आपको, तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम निकालना, या उसको उस पैराग्राफ को या स्टैंजा को समझने के लिए आपको इस वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। तो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, नॉट जस्ट द बेस वर्ड दैट आई टेक। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या बन गया? स्लोनेस, स्लगिशनेस, इनर्टनेस, आइडलनेस, एटसेट्रा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, ब्रिटल। आई बिलीव बहुत लोगों को इस वर्ड का मीनिंग पता है। ब्रिटल क्या है? एक एडजेक्टिव है,
तो ब्रिटल क्या है? लाइक अगर मैं बोलूं एग्जांपल, माय ग्रैनीज बोन्स बिकेम वीक एंड ब्रिटल. माय ग्रैनी, दैट मीन्स ग्रैंडमदर्स, माय granny's bones became weak and what? Brittle. तो इसका मीनिंग समझ ही गए होंगे आप लोग, जिनको पता भी नहीं था वो भी समझ गए होंगे. तो ब्रिटल का मतलब है समथिंग दैट इज लायबल टू ब्रेक इजीली, जो बहुत ही जल्दी से या बहुत ही आराम से टूट सके. ठीक है, समथिंग दैट इज लायबल टू ब्रेक इजीली, समथिंग दैट इज लायबल टू ब्रेक वेरी इजीली, जो बहुत ही आसानी से टूट जाए, दैट्स ब्रिटल. ठीक है, तो इसीलिए एग्जांपल क्या बताया था मैंने, द ग्रैनीज, माय ग्रैनीज बोन्स आर वीक, क्योंकि बुढ़ापे के साथ द बोन्स बिकम्स ब्रिटल, बहुत ही हल्का हो जाता है, वो कैल्शियम खो देता है बोन्स, उसके चलते. तो सिनोनिम्स क्या हो गया? फ्रेल. फ्रेल इट मींस, अगर मैं बोलूं एग्जांपल, द फ्रेल हाउस फेल डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक. जैसे कुछ दिनों पहले असम में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, तो वहां पे बहुत बिल्डिंग्स वगैरह बहुत लॉस हुआ था, तो बिल्डिंग्स वगैरह गिर गए. ठीक है, तो उसमें क्या एग्जांपल हो सकता है? द फ्रेल हाउस फेल डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक. इसका मतलब है वेरी वीक और डेलिकेट. ठीक है, वेरी वीक और डेलिकेट. तो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना, जैसे मैंने अर्थक्वेक के साथ एसोसिएट कर दिया इसको, द फ्रेल हाउस फेल ड्यू टू अर्थक्वेक. तो जो मजबूत नहीं था, जो नरम था, तो उनको इफेक्ट हुआ, वो गिर गए. ठीक है, फ्रेजाइल. तो फ्रेजाइल भी बहुत ही कॉमन टर्म है. आपने देखा होगा घर पे जो यूटेंसिल, स्पेशली ग्लास के यूटेंसिल्स जो घर पे आता है, या कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई भी पार्सल जब डिलीवर होता है जो टूट सके, आइटम्स दैट आर ब्रिटल, अगर इनसाइड कोई ऐसा आइटम है जो टूट सा है, तो फ्रेजाइल आइटम इनसाइड हैंडल विद केयर, ऐसा लिखा हुआ रहता है ना. क्या लिखा हुआ रहता है? फ्रेजाइल items inside handle with care. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंदर ऐसा चीज है जो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दी या बहुत ही धक्का वक्का लगने से वो टूट सकता है, तो इसको बहुत ही सावधानी से यूज करे, या लेके. तो समथिंग दैट इज इजीली ब्रेकेबल, इसका मतलब क्या होता है? इजीली ब्रेकेबल, दैट्स फ्रेजाइल. ठीक है, डेलिकेट का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया, फ्रेल के जैसा. समथिंग दैट इज वेरी डेलिकेट, बहुत ही नाजुक है. तो डेलिकेट का अगर मैं डायरेक्ट हिंदी में बोलूं तो ये क्या होगा? नाजुक. समथिंग दैट इज वेरी डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होता है जो, उसको डेलिकेट कहते हैं. ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो गया? टफ, वेरी टफ. ब्रिटल एकदम नहीं है. टफ, एंड्यूरिंग. लाइक अगर मैं बोलूं एंड्यूरिंग, ऐसा एग्जांपल, ही फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स विद वुमेन. तो अभी इंस्पायर मत हो जाओ उससे. इट्स लाइक ही फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ, बोला मैंने, ठीक है, ही फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स विद वुमेन. इट्स लाइक रिलेशनशिप्स या समथिंग दैट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम के लिए जो लास्ट कर सके. ठीक है, दैट लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इतना आसानी से ब्रेक ना हो, दैट्स एंड्यूरिंग, लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ड्यूरेबल. हम अभी ड्यूरेबल किसको बोलते हैं? लाइक अगर दिस प्लास्टिक इज ड्यूरेबल या दिस मटेरियल इज ड्यूरेबल, अगर हम लोग बोलते हैं, तो ड्यूरेबल हम लोग किस चीज को बोलते हैं? समथिंग दैट कैन विथस्टैंड वियर, प्रेशर, टियर एसेट्रा, जो आसानी से टूट ना जाए, जो प्रेशर में आने से टूट ना जाए या ब्रेक ना हो जाए, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो ड्यूरेबल हम लोग किसको बोलते हैं? दैट इज एबल टू विथस्टैंड वियर, प्रेशर, एक्सेट्रा, जो वेयर एंड टियर या प्रेशर को झेल सके, इसको हम लोग ड्यूरेबल कहते हैं. एंड इसका क्या होगा? नेक्स्ट है अनब्रेकेबल, जो टूटे नहीं. अनब्रेकेबल, ब्रेकेबल से बना अनब्रेकेबल, उल्टा. ठीक है, ये प्रीफिक्स अन लग गया तो उसका रिवर्स हो जाता है मीनिंग. स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको मैं और क्या समझाऊं? मजबूत, ताकतवर. ठीक है, दैट्स स्ट्रॉन्ग.
तो ये हो गया आपका मीनिंग्स। पहला वर्ड क्या था? ब्रिटल। ब्रिटल से बन गया समथिंग दैट इज लायबल टू ब्रेक इजीली। तो माय ग्रैनीज बोन्स वर वीक एंड ब्रिटल, इसीलिए मैंने बोला था। सिनोनिम्स हो गया फ्रेल, दैट इज वेरी वीक एंड डेलिकेट, लाइक, एंड देन आ गया फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इज इजीली ब्रेकेबल, इट्स फ्रेजाइल आइटम्स इनसाइड, हैंडल विद केयर। डेलिकेट इज नाजुक। एंटोनिम्स में आ गया आपका टफ, एंड्योरिंग। एंड्योरिंग इज लास्टिंग, दैट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेबल में आ गया आपका दैट इज एबल टू विथस्टैंड वियर, प्रेशर एंड टियर। ठीक है। एंड ब्रेकेबल एंड स्ट्रॉन्ग। तो सॉरी, अनब्रेकेबल एंड स्ट्रॉन्ग, इसका मीनिंग तो आपको पता ही है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। इजी है, देखो इजी है, बस मेरे साथ साथ ऐसे नोट्स बनाते हुए जाओ ना, अच्छे से ना सब कुछ नोट करते हुए जाओ। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वोकैबुलरी कब इतना इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। एंड एग्जाम्स के वर्ड तो आप नेचुरली ऐसे ही क्रैक कर पाओगे इसके बाद। ठीक है। तो थोड़ा विश्वास रखो, टाइम दो, पेशेंस रखो, एंड अपने आप पे बिलीव रखो कि ना हो जाएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, सीख लेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, ब्लेमिश। ब्लेमिश कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा अभी फोकस है, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहा है, लाइक एंटी ब्लेमिश मास्क, क्रीम, नो सनस्क्रीन, लोशन, नो फेस वॉश वगैरह। तो ब्लेमिश इज अ क्या, अभी क्या हो सकता है? लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूं, द गर्ल्स फेस वाज विदाउट ए ब्लेमिश। अगर मैं बोलूं द गर्ल्स फेस वाज विदाउट अ ब्लेमिश। अभी कुछ कुछ मेरे नालायक स्टूडेंट्स लड़के लोग तो सोचना भी शुरू कर दिए होंगे। अभी प्लीज, अभी उस पर फोकस नहीं, अभी समझ लेते, बाद में फोकस करना। तो ब्लेमिश का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज लाइक अ फ्लॉ और अ मार्क दैट स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। ठीक है। तो इट्स लाइक जो छोटा मार्क या ऐसा कुछ चीज जो किसी चीज का अपीयरेंस को रूइन कर दे, अ स्मॉल मार्क। ठीक है। अ स्मॉल मार्क और फ्लो, FLAW, हाँ फ्लॉ, which ruins the या spoils the, आप कर सकते हो, appearance of something, that's blemish। ठीक है। a mark or a cut or anything that is there on the face or that is there on somewhere, like blemish face के साथ ही associated होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल्दो फेस के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होता है, इसीलिए आपका जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आज की डेट में ये ब्लेमिश के ऊपर बहुत फोकस करके उन लोग अपना प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करते हैं। तो समथिंग दैट रूइंस द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, अ मार्क और अ फ्लॉ दैट रूइंस द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। ठीक है। दैट्स ब्लेमिश। तो सिनोनिम्स क्या हो गया? फॉल्ट। ठीक है। स्टेन, दाग, दाग अच्छे होते हैं जैसे सर्फ एक्सेल ने किया। स्मिर्च, now smirch is a dirty mark or something, like you can say a blot on somebody's character। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, nobody likes to have his honor smirched। किसी को अपना डिग्निटी, अपना ऑनर पे दाग लगना पसंद नहीं है। ठीक है। मजेदार एग्जांपल है, इट्स लाइक nobody likes to have his honor smirched। तो इसका मतलब क्या है? इट्स लाइक अ डर्टी मार्क और अ ब्लॉट ऑन समवन्स कैरेक्टर। अ डर्टी मार्क और अ ब्लॉट ऑन समवन्स कैरेक्टर, दैट्स स्मिर्च। ठीक है। That's smirch। तो smirch क्या है? A dirty mark or a blot on someone's character। It's like nobody likes to have his honor smirched। किसी को अपना डिग्निटी, अपना ऑनर पे दाग लगना पसंद नहीं है। तो स्टिग्मा, स्टिग्मा इज अ वेरी कॉमन टर्म। इट्स लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूं, किसी को अगर पकड़ लो हायर सेकेंडरी में या मैट्रिक में अगर सेकंड डिवीजन मिला है, तो उसको अगर ये बुरा लगता है, तो इट्स लाइक द स्टिग्मा ऑफ गेटिंग अ सेकंड डिवीजन विल ऑलवेज स्टिक विथ हिम।
The stigma of getting a second division in HSLC will always stick to him. तो it's like a mark of disgrace. ठीक है? A mark of disgrace. That's stigma. समझ में आ गया होगा आपको? तो एंटोनिम्स क्या होता है? स्पॉटलेस. स्पॉटलेस तो स्पॉटलेस है, दाग बिना दाग का. स्टेनलेस पूरा उसका उल्टा, स्टेन एंड स्टेनलेस, जिसपे कोई दाग नहीं है. फॉल्टनेस, ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती के बिना. इम्पैकेबल. इम्पैकेबल इज द डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉल्टलेस. लाइक सच एन इम्पैकेबल परफॉर्मेंस. ठीक है, इम्पैकेबल लाइक उसका कोई चीज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि बिना कोई फ्लॉ के, बिना कोई फॉल्ट्स के, तो दिस इज इम्पैकेबल. इम्पैकेबल इज फॉल्टलेस, इज द डायरेक्ट सिनोनिम. तो हमारा बेस वर्ड क्या है? ब्लेमिश, जिसका मतलब है कोई दाग या कोई मार्क, जो चीज कोई चीज का अपीयरेंस को रूइन कर सके. तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, द गर्ल्स फेस वाज विदाउट अ ब्लेमिश. ठीक है, सो शी शुड बी अ वेरी प्रिटी गर्ल. तो सिनोनिम्स क्या हो गया? तो फॉल्ट, स्टेन, ठीक है, दाग वगैरह. स्मिर्च, स्मिर्च इज अ डर्टी मार्क और अ ब्लॉट ऑन समवन्स कैरेक्टर. इसीलिए एग्जांपल बोला कि नोबडी लाइक्स टू हैव हिज ऑनर स्मिर्च्ड. स्टिग्मा, a disgrace, a mark of disgrace. इसीलिए ऐसा बोला था कि getting a second division will always stick to him. I mean the stigma of getting a second division. तो एंटोनिम क्या बन गया आपका? स्पॉटलेस, स्टेनलेस, faultless and impeccable, which is the direct synonym of faultless. ठीक है? Easy words, no rocket science. Let's move to the next word then. Bleak. Such a nice word. है क्या ये? Adjective. ठीक है? तो ब्लीक बहुत सेंस में हम लोग यूज करते हैं. अगर मैं जनरल एग्जांपल बोलूं, इट्स लाइक ही लुक्ड अराउंड द ब्लीक लिटिल रूम इन डिसअपॉइंटमेंट. ही लुक्ड अराउंड द bleak little room in disappointment. तो इसका मतलब क्या निकलता है? इट्स लाइक इट्स अ वेरी नेगेटिव टर्म है, वेरी नेगेटिव, डार्क मीनिंग है, बहुत ही नेगेटिवली यूज होता है. अगर मैं ब्लीक को बिल्डिंग्स या रूम्स के लिए बोलूं, किसी घर के लिए बोलूं, फॉर ऐसा करके लिख देता हूं, फॉर हाउसेस. ठीक है, फॉर हाउसेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. इट्स लाइक वेरी चार्मलेस और इनहॉस्पिटेबल, जहां पे कोई सत्कार वगैरह नहीं हो रहा है किसी का. वेरी इनहॉस्पिटेबल, वेरी चार्मलेस. ठीक है, जहां पे जाना मजा नहीं आता है, जहां पे जाके वेरी डार्क एनवायरनमेंट, बहुत ही लोग हॉस्पिटेबल नहीं. आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? इट्स लाइक पीपल वेयर पीपल आर नॉट हॉस्पिटेबल, वेयर द सिचुएशन इज नॉट लाइक वेलकमिंग, वेरी वेलकमिंग नहीं है. दैट्स चार्मलेस, दैट्स ब्लीक. ठीक है, तो सो इसलिए मैंने बोला था ही लुक्ड अराउंड द ब्लीक लिटिल रूम, दैट रूम डिड नॉट फील लाइक वेरी वेलकमिंग, इसीलिए ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. नेक्स्ट, फिर ब्लीक आप अगर पकड़ लो, लैंड या प्लॉट के लिए होता है, यूज होता है. जिसके लिए यूज होगा वैसे ही इसका मीनिंग होगा. हाँ, अगर मैं बोलूं फॉर लैंड और प्लॉट्स वगैरह, इट्स लाइक वेरी, जहां पे फर्टाइल नहीं है, जहां पे वेजिटेशन लैक करता है, वहां पे कुछ हो नहीं, उग नहीं सकता. ठीक है, दैट्स ब्लीक लैंड. समथिंग दैट लैक्स, lacking vegetation, that's bleak. ठीक है, फॉर लैंड्स एंड प्लॉट्स इट्स यूज्ड लाइक समथिंग दैट लैक्स, जो फर्टाइल नहीं है, दैट लैक्स वेजिटेशन. एंड अगर मैं वेदर के लिए बोलूं, फॉर वेदर, इट्स लाइक वेरी कोल्ड एंड मिजरेबल. ठीक है, कोल्ड एंड मिजरेबल, दैट्स ब्लीक वेदर. तो जैसे भी यूज करो आप इसको, पॉइंट इज इट विल गिव ए वेरी like negative or dark meaning. Charmless, inhospitable, lacking vegetation, cold, miserable, etc. ठीक है, तो इसको आप लोग समझ में आना होगा, आप कैसे किस वर्ड के साथ एसोसिएट कर रहे हो, कैसे रिलेशन आप इसका एस्टेब्लिश करो किसके साथ, तो अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग आएगा. ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको जहां पे भी ये वर्ड मिला आप इसको समझ पाओ, इसको गैस कर पाओ कि कैसे इसको यूज किया गया है सेंटेंस में. डिसमल, तो डिसमल इज सेम थिंग, इट्स लाइक कॉजिंग वेरी ग्लूम और लाइक वेरी डिप्रेसिव. ठीक है, जो डिप्रेशन में है. तो एग्जांपल, द डिसमल वेदर मेड द आफ्टरनून लुक लाइक एन इवनिंग. ठीक है, जो वेदर इतना ही ग्लूमी था, उतना ही डार्क था कि वो आफ्टरनून को भी लाइक इवनिंग जैसा बना दिया. ठीक है, जो ब्राइट आफ्टरनून होना चाहिए था उसको इवनिंग के जैसा बना दिया. तो लाइक इट इज द लाइक
causing a mood of gloom or depression. That's dispel. तो एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? The dispel weather made the afternoon look like an evening. समझ में आ गया? Gloomy उसी के साथ dull, like dull and dreary are synonymous. Dull and dreary, very dull, very dreary. That's very negative term. ठीक है? It was a grey and a dreary morning. अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, it was a grey and a dreary morning. तो वैसे यूज होता है उसको. वेरी डार्क, वेरी नॉट सनी, समथिंग दैट इज नॉट सनी, समथिंग दैट इज मेजरेबल, a grey and a dreary morning. dim and dark, ये सब तो जनरली यूज ही होता है. dull, dim, no, dark and dreary. तो dreary is direct synonym of dull, which is like example जैसे मैंने बताया था, grey and dreary morning. ठीक है? तो उसका सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होगा? ब्राइट, एग्जैक्टली उल्टा उसका. वेरी ब्राइट एंड प्लेजेंट, very cheerful, bright, pleasant, cheerful. and balmy. balmy is, देखो कैसे एक होता है ना, एक सीजन जहां पे जब लेट समर होना शुरू होता है, जहां पे द वेदर इज पूरा गर्म भी नहीं है, पूरा ठंडा भी नहीं है, बहुत ही वो जो गर्म होता है वो गर्म बहुत अच्छा लगता है. ठीक है? वो पूरा ठंडा नहीं है, एक्सट्रीमली गर्म भी नहीं है, बट वो जो टाइप ऑफ गर्मी है वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो गर्म अच्छा लगता है. इट्स लाइक अ प्लेजेंट वार्म वेदर. ठीक है? a pleasant warm weather. ठीक है? तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, आई रिकॉल द balmy days of late summer. I recall the balmy days of late summer. It means a very pleasant warm weather. It's not a dreary or a dull or a bleak and miserable weather. ठीक है? समझ में आ रहा है? इसका ठीक उल्टा हो रहा है. जैसे आप लोग इतना देरी सब मिजरेबल जब मिजरीज वाला देख के आ रहे थे, उसका ठीक उल्टा हो गया. ब्राइट, प्लेजेंट, चेयरफुल एंड balmy. ठीक है? तो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, बेनेवोलेंस. मैंने लास्ट, आई थिंक इसका लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, बेने एंड मेला का रूट. बेने मीन्स गुड, बेना मीन्स बैड. तो बेनेवोलेंस, बेनिग्निटी, देखो उसका उल्टा ठीक. मेलेवोलेंस, मेलिग्निटी एक्सेट्रा. जो वो गुड को रिप्रेजेंट करेगा तो इविल को रिप्रेजेंट करेगा, बैड को रिप्रेजेंट करेगा, इल को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है? तो बेनेवोलेंस का मतलब क्या है? अगर मैं एग्जांपल बोलूं, इट्स लाइक रतन टाटा हैज बेनेवोलेंस ऑफ मैनर दैट सूट्स द फिलैंथ्रोपी ऑफ हिज माइंड. रतन टाटा हैज द बेनेवोलेंस ऑफ मैनर. उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत लोगों के लिए मदद करना, उसी तरीके का उनका कैरेक्टर है. तो रतन टाटा हैज द बेनेवोलेंस ऑफ मैनर दैट सूट्स द फिलैंथ्रोपी ऑफ हिज माइंड. जैसे वो इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, फिलैंथ्रोपी क्या है? हु इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट? फिलैंथ्रोपिस्ट इज फिला. यहाँ पे भी देखो, फिला मीन्स क्या है? लव. एंथ्रोपोस कौन है? ह्यूमैनिटी. ये सब रूट्स याद रखना. कहीं पे भी ये सब रूट अगर दिख जाए, आपको वर्ड का मीनिंग पता भी नहीं है, आप ऑप्शंस देख के गैस कर लोगे, क्योंकि रूट आपको हेल्प करेगा. ठीक है? तो फिला मीन्स लव. एंथ्रोपोस इज मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी. करेक्ट? तो फिलैंथ्रोपी इज समबडी हु इज इन लव विद मैनकाइंड, जो लोगों के लिए भलाई करता है, जो मैग्नेनिमस है, जिनका पर्सनैलिटी. ठीक है? तो रतन टाटा उसके लिए जाने जाते हैं, इसलिए इतना ये एग्जांपल मैंने बताया था कुछ ऐसा ही. मिस्टर Tata has benevolence of manner that suits the philanthropy of his mind. वो जैसे लोगों को प्यार करते, लोगों के लिए करना चाहते, वैसे ही वो रिएक्ट करते, वैसे वो एक्ट करते, वैसे उनका काइंडनेस दिखता है. तो बेनेवोलेंस का मीनिंग क्या होगा? इट्स काइंडनेस. ठीक है? बीइंग वेरी काइंड. तो इसीलिए देखो इसका सिनोनिम तो जेनरोसिटी, जो बहुत ही दानवीर होता है, जो बहुत जेनरस होता है. जेनरोसिटी वहीं से आ रहा है सिनोनिम, उसका नाउन फॉर्म. तो मैंने सिनोनिम आई मीन पार्ट ऑफ स्पीच बताना भूल गया था. तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? दैट्स अ नाउन. तो इसीलिए जेनरोसिटी दैट्स अ नाउन फॉर्म. तो जेनरोसिटी सिमिलर मीनिंग, जो बहुत ही दानवीर होता है, जो बहुत जेनरस है,
जो दान करता है बहुत ज्यादा, ह्यूमैनिटी, इंसानियत रख के जो काम करता है, कंपैशन, बहुत ही जो फील करता है, कंपैशनेट होता है किसी चीज, एम्पैथी बहुत ज्यादा होता है किसी पे, दैट्स वेरी कंपैशनेट, ठीक है, लोगों के लिए हेल्प करने के लिए या किसी को दुख में देखने से वेरी कंपैशनेटली हेल्प करता है। लाइक बेनिग्निटी, फिर से बेने से होगा तो ये भी अच्छे, समथिंग दैट इट विल डिनोट समथिंग दैट इज गुड। तो बेनिग्निटी इज एन इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन टुडेज वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, समथिंग दैट डिनोट्स काइंडनेस एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर, ठीक है, इट डिनोट्स व्हाट, लिख के देता हूं, इट्स लाइक काइंडनेस एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, आज के दिन में रहने के लिए, जैसे कोविड में इतना सिचुएशन खराब होने जा रहा है, लोगों को बेनिग्निटी अप्लाई करना होगा, किसी सबके लिए हेल्प करना होगा, ठीक है। तो बेनिग्निटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन टुडेज लाइफ एंड टुडेज वर्ल्ड। तो इसका ठीक उल्टा बन जाता है अपना मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस इज लाइक अ विश टू डू समथिंग इविल टू अदर्स, ठीक है। इनह्यूमैनिटी लाइक अनकाइंडनेस, जो काइंड नहीं है, ठीक है, अनकाइंडनेस हो जाएगा उसका मीनिंग। मेलिग्निटी क्या होगा, किसी के लिए हार्म करना, जैसे बेनिग्निटी अच्छा करना, टॉलरेंट होना दूसरों के लिए, काइंडनेस दिखाना, अच्छा करना, बेनिफिट करना। तो वैसे ही मेलिग्निटी उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इल विल रहना, किसी को हार्म करने का इंटेंशन रखना, इंटेंडिंग टू कॉज हार्म। तो मेलेवोलेंस में पहले लिख देता हूं, मेलेवोलेंस इज अ विश टू डू evil to others, that's malevolence, ठीक है। इनह्यूमैनिटी आपको पता ही है, that's unkindness, काइंड बिल्कुल नहीं शो करना काइंडनेस, that's unkindness। मैलिग्निटी उल्टा हो जाएगा ill will, ill will or like intending to cause harm, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है, intending to cause harm, that's malignity। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स है, लेकिन याद रखना होगा क्योंकि बहुत ही रैपिडली ये सब आपको एग्जाम में दिखेगा। ये वो एग्जाम में कोई कहीं पे अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिख जाएगा, या फिलर्स में दिख जाएगा, या कंप्रीहेंशन में दिख जाएगा, या हो सकता है एरर करेक्शन के नॉर्मल क्वेश्चन में मिल जाए आपको। तो ये सब वर्ड्स भूलने के लिए नहीं है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एंड देखो मीनिंग सिंपल है, जैसे मैंने अभी पूरा ब्रेक करके दे दिया आपको बेनेवोलेंस से, ठीक है। तो बेनेवोलेंस में मतलब क्या है, इट्स लाइक वेरी काइंडनेस शो करना। तो उसका मीनिंग, इसका सिनोनिम्स हो जाता है जेनरोसिटी, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, ठीक है, बेनिग्निटी, मैग्नेनिमस वगैरह। फिर आपका एंटोनिम हो जाएगा मेलिवोलेंस, इनह्यूमैनिटी, मैलिग्निटी एटसेट्रा, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, बर्बरस। बर्बरस, अभी हम लोग जो पहले वो देख लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। OU से एंड हो रहा है ना, क्या होना चाहिए, जनरली एडजेक्टिव होना चाहिए, तो एडजेक्टिव ही है। बर्बरस किसको बोलते हैं, लाइक अगर मैं लास्ट डे भी ऐसा एग्जांपल मैंने दिया था, आई मीन लास्ट डे का मतलब, आई मीन लास्ट वीडियो में जो सेलुलर जेल के बारे में मैंने बताया था, आई बिलीव नो। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं, इट वाज बर्बरस टू ट्रीट द प्रिजनर्स इन दैट मैनर। तो वो काला पानी, वो जेल में जैसे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ट्रीट करते थे वहां पे, इट्स लाइक इट वाज बर्बरस टू ट्रीट द प्रिजनर्स इन दैट मैनर। एग्जांपल मैं लिख देता हूं, इट वाज barbarous to treat the prisoners in that manner। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इट मीन्स एक्सट्रीमली ब्रूटल, एक्सट्रीमली ब्रूटल, दैट्स बार्बरस, ठीक है। बहुत ही नाइंसाफी के साथ या बहुत ही घिनौनापंती के साथ एकदम ही काइंडनेस नहीं दिखा के पेश आना, दैट्स बर्बरस। नो, बीइंग वेरी सैवेज एंड अनटेम्ड, जैसे यहाँ पे क्रूअल, विशियस, ये दिस आर वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अनसिविलाइज्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, सैवेज, ये वेरी ट्रेंडी वर्ड है, ठीक है। सैवेज आजकल
आप कोई भी मीम देख लो, ये फेसबुक वगैरह में जो आता है वहां पे सैवेज लिखा हुआ रहता है, तो सैवेज का एक्चुअली मतलब क्या है? इट्स लाइक वेरी फियर्स एंड वायलेंट, एकदम कदर नहीं करके एकदम वायलेंटली वो करना। इट्स लाइक अगर मैं बोलूं, सैवेज डॉग्स रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट, जिसको भी देख रहा है काट रहा है ठीक है, तो सैवेज का मतलब क्या है? वेरी फियर्स एंड वायलेंट, फियर्स एंड वायलेंट, दैट्स सैवेज। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, याद रखना, सैवेज डॉग्स रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स। ठीक है, एंड सैवेज आपको वैसे भी याद रहेगा बिकॉज सब आप लोग मीम्स एक्सपर्ट हो, मुझे पता है। तो अनटेम्ड, अनटेम्ड क्या मतलब? जिसको डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनटेम्ड एनिमल्स वगैरह हम लोग को बोलते हैं ना, लाइक नॉट डोमेस्टिक एनिमल्स, सम एनिमल्स दैट आर नॉट डोमेस्टिक्स। जंगली होगा वो, जिसको डोमेस्टिकेटेड नहीं कर सकते हो आप, दैट्स अनटेम्ड। जिनको आप सुधार नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो कि कैसे चलना है ना, हम लोग जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह के साथ करते हैं, टेम करते हैं उनको। ठीक है, तो वैसे अनटेम्ड उसका उल्टा हो जाएगा, जंगली हो जाएगा। क्रूअल, क्रूअल का मतलब तो आपको पता ही है। एंड विशियस, विशियस इज लाइक, अगर मैं बोलूं, इज शी सम काइंड ऑफ एन विशियस एनिमल? इज शी सम काइंड ऑफ विशियस एनिमल? इट्स लाइक जो बहुत ही डेलिबरेटली क्रूअल या वायलेंटली एक्ट करता है, लाइक डेलिबरेटली, deliberately cruel or violent, that's vicious। तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, इज शी सम काइंड ऑफ विशियस एनिमल, क्वेश्चन मार्क। तो वो ऐसे ही बिहेव करता है कि वो डेलिबरेटली किसी को हार्म करना चाहता है या बहुत वायलेंटली रिएक्ट करना चाहता है, इसलिए इसको विशियस कहते हैं। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कल्चर्ड, जैसे सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड या कल्चर्ड होगा, अनकल्चर्ड था आपका, अनसिविलाइज्ड था आपका, बर्बरियस का सिनोनिम, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, कल्चर्ड या सिविलाइज्ड। ठीक है, ह्यूमेन, ह्यूमेन इज showing compassion, showing kindness, very humane character। ठीक है, it's like showing compassion or kindness, that's humane। gentle, आपको तो पता ही है, gentle and considerate, considerate are very harmless। ठीक है, they are very harmless, that's considerate, जो बहुत ही आसानी से मान जाते हैं ना, कंसीडर करते हैं या दिल में जगह दे देते हैं। ठीक है, that's considerate। तो उसका बर्बरस का पूरा उल्टा होगा। बर्बरस का मतलब क्या था? इट वाज बर्बरस टू ट्रीट द प्रिजनर्स इन दैट मैनर, दैट मींस एक्सट्रीमली ब्रूटल मैनर, एक्सट्रीमली ब्रूटल। तो सिनोनिम्स हो गया आपका अनसिविलाइज्ड। ठीक है, तो और एक हो गया आपका सैवेज, जैसे एग्जांपल बताया था, सैवेज डॉग्स रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट, इट्स लाइक फियर्स एंड वायलेंट, अनटेम्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, जिसको टेम नहीं किया जा सकता, जो जंगली है। ठीक है, वाइल्ड होगा आपका वो, तो आप एक सिनोनिम वाइल्ड भी लिख के रख सकते हो। तो क्रूअल, आपको पता ही है क्रूअल। ठीक है, हानि करने वाला जो इंटेंशन होता है, दैट्स क्रूअल नेचर। तो वाइल्ड एंड विशियस, जैसे मैंने बताया था आपको, डेलिबरेटली क्रूअल और वायलेंट, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? कल्चर्ड, ह्यूमेन, जेंटल एंड कंसिडरेट। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो। आई बिलीव यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ नया चीजें, नया वर्ड सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है एंड आप यहाँ तक अगर देख रहे हो वीडियो, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को। एंड आपको प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए, कीप प्रिपेयरिंग, लॉकडाउन हो ना हो, जैसे भी हो सिचुएशन, कोविड हो ना हो, एग्जाम जरूर होगा। एंड एग्जाम जब होगा आप लोग को आप क्रैक कर पाओ, ऐसा आपका प्रिपरेशन होना ही चाहिए हमेशा। ठीक है, तो एनीवे, तो विल एंड इट हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप vocabing, टेक केयर, बाय।